Hello students, welcome to today's session. I am S.K. Nigam, PhD Chemistry, Kendriya Vidyalaya. Now in today's session, we will just consider the chapter number 3 of NCERT, that is named as Electrochemistry. So आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जो कि NCERT का तीसरा चैप्टर है, और इस चैप्टर से बोर्ड एग्ज़ाम में 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। क्योंकि ये फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है, इसलिए इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल के पॉइंट्स भी हम डिस्कस करेंगे, जैसे नस्ट इक्वेशन है, कंडक्टिविटी है, कंडक्टेंस है, लाइक दिस। एंड देयर आर वेरियस अदर टॉपिक्स, फॉर एग्जांपल सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिएक्शंस, हाफ रिएक्शंस, ये सब भी इसके अंदर आएगा। देन फ्री एनर्जी चेंज के बारे में हम पढ़ेंगे कि फ्री एनर्जी का इसमें कैसे हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। सो ये सारी चीज़ इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इन्जॉय करेंगे आप इसको समझने में। सो बिगिन करते हैं। सो फर्स्ट वी हैव टू नो द मीनिंग ऑफ द नेम ऑफ द चैप्टर। सो व्हाट डज इट मीन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? Actually, electrochemistry is the branch of chemistry which generally deals with the study of the electrical energy produced by the performance of any spontaneous chemical reaction, or just it may be the reverse of the definition which I have told you. So electrochemistry is the branch of chemistry which deals with the study of the conversion of electrical energy into the chemical energy, or chemical energy into the electrical energy. So basically, when electrical energy is generated, when any spontaneous chemical reaction is just happening, and during that spontaneous chemical reaction the free energy is converting into the electrical energy, and the reverse is in the case, it is also the case, and that case is when you are passing electricity and performing any non-spontaneous chemical process, then it also comes under the category of electrochemistry. So basically electrochemistry है क्या? ये एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में हम किसी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन हो, या फिर किसी एक नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन का इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से उसकी हैपनिंग हो, इसको हम स्टडी करते हैं। So basically there is a definition written here. Electrochemistry is the study of the production of electricity from energies released during a spontaneous chemical reaction, and the use of electrical energy to bring about non-spontaneous chemical transformation. Means both the processes are written here. So with the help of a spontaneous reaction, if electrical energy is generating, or with the help of electrical energy you are performing any non-spontaneous chemical reaction. So I think you are very well aware about the spontaneous and non-spontaneous process. Spontaneous means which occur by their own accord. There is no need of any external agency. For example, if you are dropping a stone, then it will come to the ground only, it will not move upward. So spontaneous process हम उसे कहते हैं जो अपने आप हो जाती है, और नॉन स्पॉन्टेनियस वो होती है जिसको हमें किसी एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प से करना हो। तो जो पहला पेज है ये सिर्फ इंट्रोडक्शन बता रहा है आपको। इस इंट्रोडक्शन में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं जो आप आराम से पढ़ के समझ सकते हो, उसमें कुछ ऐसा बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। जैसे इसमें लिखा है कि बहुत सारे मेटल्स का हम जब रिफाइनिंग करते हैं तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं, जैसे क्लोरीन हो गई, फ्लोरीन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम को निकालना हुआ। सो ये सब इसका एक यूज़ है। देन बहुत सारी बैटरीज और फ्यूल सेल का हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम किसी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को पढ़ते हैं। ये सब इस जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप इस थ्रू जाएंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। सो बहुत सारा समय हम इस पर वेस्ट ना करके हम सीधे मेन टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अगेन एज द नेम इंडिकेट्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, they are the devices in which either of the two process, means with the help of electricity you are performing any non-spontaneous process, or with the help of any spontaneous process you are generating the electricity. So both the process, अगर दोनों में से किसी भी प्रोसेस कोई एक सेल में, कोई डिवाइस में हो रही है तो उसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। जिसका एक बहुत आसान सा एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में, जिसमें हमने ये पढ़ा था, जिसका सबसे अच्छा सा एग्जाम्पल है डैनियल सेल। सो आई थिंक सभी को डैनियल सेल के बारे में पता होगा। सो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए सेल में होता क्या है। सेल एक तरह की डिवाइसेस होती हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक तरह की ऐसी डिवाइस होती है जिसमें या तो आप किसी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, या इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से आप नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली डैनियल सेल एक तरह का गैल्वेनिक सेल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरीके के होते हैं,
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम बेसिकली दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो हमारा होगा वो दो तरीके से डिवाइड किया जाता है। एक है इलेक्ट्रोलिटिक, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, और एक होता है गैल्वेनिक, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। डिटेल में जाने से पहले थोड़ा सा हम डैनियल सेल के बारे में जानेंगे, जो हमने रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में पढ़ा था। डैनियल सेल में there are two electrodes which are dipped in the electrolyte, जो कि हमने देखा हुआ है रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में क्लास 11 के। ये दो कंटेनर हैं, इसमें कॉपर सल्फेट भरा हुआ है और ये कॉपर रॉड इसमें डिप है। इसमें जिंक रॉड डिप है और इसमें क्या चीज़ फिल है, जिंक सल्फेट। ये हमने इसको सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट किया हुआ है। ये सब आपने पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा। इट इज़ सॉल्ट ब्रिज, it has its own role, and then it is connected through a wire. Okay, you can connect here the voltmeter or ammeter. With the help of it you can know the amount of current or the voltage across the electrode. Okay, so this is anode, and anode is always negative in charge, and it is cathode, and it is always positive in charge. So basically इसमें होता क्या है कि जब हम इस दोनों इलेक्ट्रोड को वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाती है। और इलेक्ट्रिक करंट है क्या, एक्चुअली इट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, नथिंग एल्स। सो डैनियल सेल में एनोड और कैथोड दोनों को हमने जब देखा तो इसका जो ई सेल होता है ये हमें बताया गया है 1.1 वोल्ट। 1.1 वोल्ट इज़ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल potential of this Daniell cell. So in this page of NCERT, it is very clearly mentioned. This is the diagram of Daniell cell. Everything is just mentioned here, जो कि मैंने आपको बना के दिखाया। Then यहाँ पे 3 situations बताई गई है। इन 3 situations में ये क्या कह रहे हैं कि अगर हम Daniell cell में कोई एक्सटर्नल सोर्स लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं, या यहाँ पे एक रियोस्टेट लगाओ जिससे आप रेजिस्टेंस को वैरी करके पोटेंशियल को वैरी कर लेते हो, और इसमें एक बैटरी लगी हुई है, और इन्होंने कहा कि इस सेल का 1.1 वोल्ट का खुद का पोटेंशियल है। अगर हमने इसमें जो एक्सटर्नल सेल लगाया है इसका पोटेंशियल, ये देखिए लिखा ई एक्सटर्नल इज लेस देन 1.1, ई एक्सटर्नल इज लेस देन 1.1। इट मीन्स कि जो इसका खुद का सेल पोटेंशियल था उससे कम अगर पोटेंशियल आपने लगाया तो क्या हो जाएगा, देयर विल बी नो एनी इफेक्ट ऑफ द मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमेशा एनोड से निकलता है, कैथोड पे जाता है, करंट इसका रिवर्स फ्लो करती है, तो इलेक्ट्रॉन जिंक से गया कैथोड की तरफ, कॉपर की तरफ, ये कंटिन्यूस में चलता रहेगा, करंट वापस उल्टी चलेगी, कॉपर से जिंक की तरफ चलेगी। तो अगर पोटेंशियल जो आपने एक्सटर्नली अप्लाई किया है वो इस डैनियल सेल से कम का है तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर आपने जो दूसरा डायग्राम है वो ये कहता है कि अगर आपने सेम पोटेंशियल लगा दिया जो कि इसका खुद का पोटेंशियल था तो क्या हो जाएगा, करंट का फ्लो रुक जाएगा। देखिए यहाँ पे करंट का डायरेक्शन बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन बना हुआ है कि ये इस तरफ जा रहा है। अभी इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के लिए इसने इस तरह से स्ट्रेट कर रखा है एरो, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे करंट 0, I इज इक्वल टू 0। एंड थर्ड सिचुएशन ये है कि अगर आपने जो एक्सटर्नल EMF जो दिया हुआ है, एक्सटर्नल जो एजेंसी लगाई हुई है जो कि वो पोटेंशियल अप्लाई कर रही है, अगर उसका पोटेंशियल 1.1 वोल्ट जो कि डैनियल सेल का खुद का पोटेंशियल है उससे ज़्यादा आपने लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। मतलब अभी हमने इसमें क्या देखा था, इलेक्ट्रॉन जिंक से निकल के कॉपर की तरफ जा रहे थे, अभी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कॉपर से निकल के जिंक की तरफ जा रहे हैं, और जो इलेक्ट्रोड पहले नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया है। इट मीन्स कि अगर आपने एक्सटर्नल जो लगाया है बैटरी, उसका पोटेंशियल अगर इसके सेल पोटेंशियल से ज़्यादा था तो ये इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा, यानी करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा। अभी करंट का डायरेक्शन था कॉपर से जिंक की तरफ जाने का, अभी हो जाएगा जिंक से कॉपर की तरफ जाने का। तो एक बहुत आसान सा इसका एक छोटा सा एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल आप सभी ने टग ऑफ वॉर खेला होगा, इसमें हम क्या करते हैं, 2 टीम होती हैं और एक रस्सी होती है, उसको पकड़े खींचना होता है। अगर कोई एक टीम बहुत वीक होती है, दूसरी टीम बहुत स्ट्रांग होती है, तो जो स्ट्रांग होगी वो टग ऑफ वॉर में रस्सी अपनी तरफ खींच ले जाएगी। अगर दोनों तरफ सेम फोर्स लग रहा है तो वो बीच में ही रुकी रहेगी, और अगर आपने उस जो टीम ऑलरेडी पहले से जीत रही थी, जो हार रही थी, आपने उसको एक असिस्टेंस दे दी, एक पावरफुल आदमी उसमें और ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि जो रस्सी अभी इस तरफ जा रही थी अब वो इधर जाने लगेगी। So just like that example, you can understand the concept of the flow of the direction of the current.
ना हमारा जो मेन मोटिव है अभी वो गैल्वेनिक सेल पे है। तो गैल्वेनिक सेल क्या होता है हम उसकी डिटेल स्टडी करेंगे अभी बहुत जल्दी, क्योंकि वीडियो वाकई में बहुत लंबी हो जाती है, शायद इसलिए आप देखना पसंद नहीं करते हो। नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग है दैट इज़ गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल इट इज़ अ काइंड ऑफ डिवाइस जिस डिवाइस में आप क्या करते हो, एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, एंड इस केमिकल रिएक्शन से आपने इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट होती है। तो बेसिकली गैल्वेनिक सेल इज अ काइंड ऑफ डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जनरेटिंग बाय द परफॉर्मेंस ऑफ एनी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल जो हम बार बार पढ़ते हैं वो डैनियल सेल ही है। किसी भी सेल के लिए हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे उसमें एनोड क्या है, कैथोड क्या है, इसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं इलेक्ट्रोड। एनोड एंड कैथोड को हम कलेक्टिवली बोलेंगे इलेक्ट्रोड, मीन्स द टर्मिनल्स जो कि वायर से कनेक्टेड होते हैं। देन उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या आप ऐड कर रहे हो। देन उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, और जब उसको आप एडअप कर देते हो तो वो बन जाती है नेट रिएक्शन। देन उसके बाद में हम उसका सेल पोटेंशियल निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना है कि डैनियल सेल में एनोड क्या है। तो एनोड है डैनियल सेल में, हम किसकी बात कर रहे हैं, डैनियल सेल की बात कर रहे हैं। डैनियल सेल में एनोड है हमारा जिंक रॉड, जिंक रॉड इज द एनोड, एंड कैथोड क्या है, कॉपर रॉड, और दोनों ही अपने अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में डिप हैं। ये जिंक सल्फेट में डिप है और ये CuSO4 में डिप है, ओके, जो कि डायग्राम अभी आपको मैंने बना के दिखाया था। अब एनोड की रिएक्शन क्या हो रही है, क्योंकि ये एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जिंक सॉलिड क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और ये बनाएगा Zn2+। इसी तरह से जब हम बात करते हैं कैथोड की, तो कैथोड पे रिडक्शन होता है, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो कॉपर रॉड है तो कॉपर Cu2+ एक्वस, यहाँ पर आपको एक्वस मेंशन करना होगा, Cu aqueous plus 2 electron gives out Cu solid. So these two are the reactions. This is anode reaction, this is cathodic reaction, and collectively they are written as Zn solid plus Cu2 plus aqueous। 2 इलेक्ट्रॉन आप दोनों में कैंसिल आउट कर दोगे और यहाँ हो जाएगा Zn2 plus aqueous plus Cu solid. So this is the net equation, this is the net reaction, जो कि उस सेल की नेट रिएक्शन होगी। अब बात करते हैं इन दोनों की सिंगल रिएक्शंस। अगर हम देखें तो ये दोनों हाफ रिएक्शंस कहलाती हैं। दीज टू आर टर्म्ड एज हाफ रिएक्शंस। ये हो जाएगी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, क्योंकि इस पे कौन सी प्रोसेस हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, इसलिए ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कहलाएगी। और क्योंकि इस पे रिडक्शन हो रहा है इसलिए कहलाएगा रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ओके। So these two reactions are termed as oxidation half reaction, जो कि एनोड पे हो रही है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन भी कैथोड पे हो रही है, और इनको हम कलेक्टिवली रिडॉक्स कपल के नाम से भी जानते हैं। दे आर आल्सो टर्म्ड एज रिडॉक्स कपल, ओके। सो ये तो हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन डैनियल सेल की। अभी हम थोड़ा सा इसका और डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी तो सिंपली रिएक्शंस हो गए, आप बात करते हैं इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। तो ये इलेक्ट्रोड क्या होते हैं और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रोड आपने देखा, दे आर 2 इलेक्ट्रोड्स, एक एनोड है और एक कैथोड है। एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या हो रहा है, हमारा रिडक्शन हो रहा है। सो इलेक्ट्रोड में बेसिकली इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं कि एक मेटल की रॉड है जो किसी एक इलेक्ट्रोलाइट में डिप है। दिस इज मेटल रॉड एंड इट इज डिप्ड इन एनी इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जांपल दिस इज ZnSO4 एंड दिस इज जिंक रॉड, जिंक की रॉड है जो कि ZnSO4 में डिप्ड है। तो किसी भी इलेक्ट्रोड पे अपनी हाफ रिएक्शन होती है। जनरली हम मान लेते हैं कि इसे जिंक सॉलिड है तो ये क्या करेगा, Zn2+ एक्वस में कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करेगा। तो जब ये इलेक्ट्रोड में से जिंक ने क्या किया, Zn2+ में कन्वर्ट हुआ, तो Zn2+ में कन्वर्ट होने का मतलब एक्वस का मतलब इट इज़ डिजॉल्व इन द इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। तो Zn2+ जो बन रहा है वो इसकी सराउंडिंग में इस तरीके से, ऑलरेडी यहाँ Zn2+ है इस सोल्यूशन में, फिर भी उसके सराउंडिंग में और भी Zn2+ आ जाएंगे इस तरीके से, और जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ कलेक्ट हो जाएंगे, वो इस इलेक्ट्रोड पे कलेक्ट हो जाएंगे, ओके।
So this is the concept of electrode reactions. This is anode. That is why oxidation is happening here. Now because of this formation, अगर आप इसको सिंपली समझो तो ये एक्चुअली है क्या, एक नेगेटिव लेयर है और उसके चारों तरफ पॉजिटिव की लेयर है. तो आपने बहुत से कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे कैपेसिटर्स में या अदर जगह पढ़े होंगे कि अगर कोई दो अपोजिटली चार्ज लेयर आमने सामने आती है तो इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करता है. ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कब डेवलप करता है, जब दो अपोजिटली चार्ज लेयर आमने सामने आ जाती है. तो सो पोटेंशियल डिफरेंस एट द इंटरफेस. व्हाट इज इंटरफेस? जहाँ पर दोनों चीज़ एक दूसरे को फेस कर रही है. दिस इज इंटरफेस, दिस इज इंटरफेस, दिस ऑल इज द इंटरफेस. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर सिटिंग इन अ रूम, तो जो आपकी वॉल है, अगर आपके रूम के बगल में एक और रूम है, तो जो वो वॉल होगी जो दोनों में शेयर हो रही है वो इंटरफेस कहलाएगी. ओके, सो द पोटेंशियल डिफरेंस एट द इंटरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट. दिस इज इलेक्ट्रोड एंड दिस इज इलेक्ट्रोलाइट. दिस इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो हमारी जो अगली जो हेडिंग हो गई वो क्या हो गई? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस एट द इंटरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट. ओके, सो अगर ये ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाएगा, अगर रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएगा. ओके, रिडक्शन में इसका रिवर्स हो जाएगा, 2+ यहाँ आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनके सराउंडिंग में आ जाएंगे, इस तरीके से. बस पर बेसिकली क्योंकि ये मेटल्स हैं तो मेटल्स में हमेशा हम जानते हैं मेटल्स में इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, इसलिए हम इसको इस तरीके से समझाते हैं कि इलेक्ट्रॉन लूज़ किया और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो गया. ना अगर दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एनोड है तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कैथोड है तो रिडक्शन होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल. बट जब हम सारी कंडीशंस को यहाँ पे स्टैंडर्ड रखते हैं, मतलब मोलर कंसंट्रेशन रखते हैं, 1 मोलर कंसंट्रेशन और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर रखते हैं, तो अब जो पोटेंशियल होता है उसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नाम देते हैं. इफ़ ऑल द कंडीशंस आर स्टैंडर्ड देन ये पोटेंशियल क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. और इसका मतलब है कि दो रिएक्शन है तो दो तरह के स्टैंडर्ड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. बट IUPAC ने हमें ये कहा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू IUPAC द रिडक्शन पोटेंशियल इज बेसिकली कंसीडर्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. रिडक्शन पोटेंशियल को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे और इसका जो स्टैंडर्ड होगा वही हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा. मीन्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. क्लियर? सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल हो गया, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो गया. अब हम बात करते हैं कि जैसे डैनियल सेल ही था, तो डैनियल सेल में जैसे एक इलेक्ट्रोड है तो यहाँ पे दो इंटरफेस हैं. एक इलेक्ट्रोड था तो इलेक्ट्रोड में सिर्फ इंटरफेस था इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट का, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया. अब अगर हम सेल की बात करते हैं तो सेल में दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं तो दोनों इलेक्ट्रोड का अपना अपना पोटेंशियल होगा. जैसे एक इलेक्ट्रोड यहाँ था और एक इलेक्ट्रोड यहाँ था, इस तरीके से जो डायग्राम अभी थोड़ी देर पहले हमने बना के आपको समझाया था. तो ये एक सॉल्ट ब्रिज है, ये अपने सोल्यूशंस में डिप हैं, तो ये एक इलेक्ट्रोड ये इन दोनों का अपना अपना पोटेंशियल होगा. तो ये भी एक इंटरफेस है. इन दोनों इंटरफेस पे जो डिफरेंसेस आ रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस के वो कहलाएगा सेल पोटेंशियल. सो अगली जो हमारी हेडिंग होगी दैट इज सेल पोटेंशियल एंड इट इज़ रिटेन एज ई सेल. सेल पोटेंशियल मतलब सेल का पोटेंशियल कितना है, या इसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के नाम से भी जानते हैं. तो ई सेल इज द potential difference of the electrodes only. Therefore, mathematically it is E cathode minus E anode. This is the formula of E cell. Means अगर आपको जैसे ये कैथोड था, ये कॉपर है, कैथोड है और इधर जिंक है, एनोड पे ये जिंक है, तो अगर आपको दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता है तो आप उसके सेल का सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड. पर आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी आप पोटेंशियल निकाल रहे हो वो स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए? रिडक्शन पोटेंशियल का होना चाहिए. क्योंकि IUPAC के हिसाब से हमने क्या करना है, हमें IUPAC के हिसाब से रिडक्शन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड मान के चलना है. तो ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, जिसको हमें पता है डैनियल सेल के केस में हमको 1.1 वोल्ट मिलता है, क्योंकि हमें कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और हमें जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता दिया जाता है, उसके हिसाब से वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं. अब हम आज के लेक्चर में एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, सेल का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं. सेल को अगर हमें लिखना है, ये तो डायग्राम हो गया, अगर हमें सेल को लिखना है एक लाइन में तो हम कैसे लिखेंगे. तो सेल को लिखने का एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम सिंपली ABC से समझते हैं.
ABC अल्फ़ाबेट होते हैं ना इंग्लिश के, ABC, A फॉर एनोड, B फॉर ब्रिज एंड C फॉर कैथोड। कभी नहीं भूलेंगे ये ABC क्या होता है, एनोड, ब्रिज एंड कैथोड। तो एनोड का मतलब जिस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो डैनियल सेल के लिए आपको पता है कि इस डैनियल सेल में जिंक पे हो रहा था ऑक्सीडेशन। तो हम क्या करते हैं, पहले तो हमें रिएक्शन पता होनी चाहिए। Zn सॉलिड से Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये सब हमें एक्वस और सॉलिड लिखना नहीं भूलना चाहिए। Cu2 प्लस एक्वस से प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Cu सॉलिड। ये हमारी कैथोड की रिएक्शन, ये एनोड की रिएक्शन। तो जो कन्वर्जन यहाँ हो रहा है उसको हम लिखेंगे एनोड की जगह पे। कन्वर्जन क्या है, जिंक सॉलिड कन्वर्ट हुआ है Zn2 प्लस एक्वस में। ओके, तो ये हो गया एनोड। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनोड, जिंक सॉलिड देन स्लैश, ये इंटरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इलेक्ट्रोलाइट को बता रहा है। देन हमने ब्रिज लगाए, स्लैंट लाइंस होती हैं, ये ब्रिज को रिप्रेजेंट करेगा। देन कैथोड, कैथोड में क्या हो रहा है, Cu2 प्लस Cu में कन्वर्ट हो रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन से कैंसिल आउट हो जाते हैं, जितना निकलता है उतना यूज अप हो जाता है। तो Cu2 प्लस से Cu सॉलिड, ये हो गया कैथोड। तो एनोड, ब्रिज, कैथोड। यहाँ पर भी देखो इलेक्ट्रोलाइट और ये इंटरफेस है, ये इलेक्ट्रोड है। तो ये एक सेल रिप्रेजेंटेशन है। किसी भी सेल को अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो तो आपको पहले एनोड लिखना होता है, देन कैथोड ब्रिज लगाना होता है, देन आपको कैथोड लिखना होता है। ओके, अब हम बात करते हैं कि अगर हमें इसी सेल का ई सेल निकालना है तो ई सेल कैसे निकालेंगे। ई सेल निकालने के लिए ई सेल का फॉर्मूला लगाएंगे। ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये फॉर्मूला लगाएंगे। और ई सेल के लिए हमें क्या बोला गया है कि हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है। तो कैथोड क्या था हमारा, कॉपर था, और कॉपर पे रिएक्शन कैथोड पे रिडक्शन की ही हो रही है, इसलिए हमें सिंपली रिडक्शन के हिसाब से सबस्क्रिप्ट में लिखना होगा Cu2 प्लस से Cu का कन्वर्जन माइनस ई एनोड। अगेन यहाँ हो तो रहा है ऑक्सीडेशन, पर आपको ऑक्सीडेशन नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है। इसलिए कन्वर्जन के हिसाब से सबस्क्रिप्ट में क्या लिखेंगे आप, Zn2 प्लस से Zn। यहाँ आपको बहुत ध्यान रखना है, एनोड पे हो रहा है ऑक्सीडेशन पर फिर भी हम लिख रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, और इसके फॉर्मूले के हिसाब से आप ई सेल की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने आज के अभी के सेशन में क्या क्या पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन जाना, उसकी डेफिनेशन जानी, देन हमने डैनियल सेल की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशंस पढ़ी। डैनियल सेल की इन्फॉर्मेशन का पढ़ने के बाद हमने गैल्वेनिक सेल को जाना, गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं, गैल्वेनिक सेल में रिएक्शंस, हाफ रिएक्शंस क्या होती है, देन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट्स, देन ई सेल, देन लास्ट में सेल रिप्रेजेंटेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको आपको बहुत इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर सेल रिप्रेजेंटेशन करके एक और सेल के बारे में बताया गया है कि अगर एक सेल है जिसमें कॉपर एनोड है और सिल्वर कैथोड है, जो कि रिएक्शन यहाँ पे लिख के दिखाई गई है। कैथोड पे देखिए 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट 2Ag, एनोड पे Cu गिव्स आउट Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो उसी हिसाब से फिर यहाँ पर एक सेल रिप्रेजेंटेशन किया गया है। क्योंकि ऑक्सीडेशन कॉपर का था, इसलिए पहले हमने कॉपर यानी एनोड को लिखा है Cu2 प्लस, देन हमने ब्रिज लगाया है, देन हमने कैथोड लिखा है जो कि Ag प्लस से Ag होगा, देन ई सेल का फॉर्मूला लगा के हमने इक्वेशन बना ली। ओके, तो आज के सेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे आगे की जो टॉपिक्स हैं, जिसमें नेक्स्ट इक्वेशन भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कुछ न्यूमेरिकल भी उसके सॉल्व करेंगे। तो आई होप समझ में आया होगा सभी को। अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, और कुछ कमेंट ज़रूर करिएगा अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है या अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, जो भी लग रहा है आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। ओके, थैंक यू।